Hello children, this is the second part of our video of the chapter Power Sharing. First of all, we will start with the map of Europe and we will show the location of Belgium. So look at this, with this pink color we can see the location of Belgium with its capital Brussels at the center, and neighboring countries of Belgium are Netherlands, Germany, you can see here Netherlands, Germany, France, Switzerland, these are its neighboring countries. It's a very little country having a small population, and it is compared with Haryana in your first chapter, Power Sharing. Now already you have gone through the composition of Belgium. Dutch are in majority, 59% lives in Flemish region. French are in minority, 40% lives in Wallonia region, and there is 1% of Belgians who speak German. We need not to discuss it again. Now come to know about the composition of capital Brussels. Now this is the ethnic composition of capital Brussels. French is in majority 80%, Dutch is in minority 20%. There is always conflict between Dutch and French. Reason behind it is minority 40% French is rich compared to majority 59% Dutch, and that has always arised tension in Belgium from 1950s to 1960s. We can say from 1950 to 1970. As it is 50s and 60s, so that means 1950 to 1970. And the reason behind it, minority French is comparatively rich compared to majority Dutch. Now the leaders of Belgium, what they did? Leaders of Belgium had an innovative idea. उन्होंने क्या किया? They discussed a lot. उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को amend किया several times, at least 4 times from 1970 to 1993. और उन्होंने देखा कि अगर वो अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को amend करते हैं और पावर को शेयर करते हैं, तो that will be beneficial for each and every community of Belgium, each and every language group of Belgium. So due to this, they amended their constitution from 1970 to 1993 at least 4 times. Now, what type of power sharing arrangement in Belgium were adopted by their leaders, by their constitution? So now look at the features of their constitution. फर्स्ट पॉइंट है, क्या है कि डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, जैसा कि हम लोग इंडिया में भी देखते हैं कि वी आर हैविंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट, देन वी आर हैविंग अ स्टेट गवर्नमेंट, देन वी आर ऑल्सो हैविंग अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो इन द सेम वे, फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेड अ गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री. अब देखो कंट्री में क्या था कि 59% डच वेयर इन मेजोरिटी एंड 40% फ्रेंच वेयर इन माइनॉरिटी. इन स्पाइट ऑफ इट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डच और फ्रेंच को इक्वल सीट दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में. इन द सेकेंड पॉइंट इट इज़ रिटन कि मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बिन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन. यानी ये 2 रीजन कौन कौन सा है? तो वैलोनिया रीजन और फ्रेंच रीजन. तो बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर्स है, इट वाज आल्सो गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं है. सबऑर्डिनेट मीन्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, बट इट कोऑर्डिनेट्स विद ईच अदर. यानी वो एक दूसरे के साथ मिल करके काम करता है. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट्स विद द स्टेट गवर्नमेंट. नाउ कम इन द कैपिटल ब्रुसेल्स. एज यू हैव सीन दैट कॉम्पोजिशन इज ऑलमोस्ट ऑपोजिट इन द कैपिटल ब्रुसेल्स. कैपिटल में हम लोगों ने क्या देखा? 80% फ्रेंच है और 20% डच है. तो इन कैपिटल ब्रुसेल्स ऑल्सो बोथ द कम्युनिटीज़ यानी डच एंड फ्रेंच गॉट इक्वल रिप्रेजेंटेशन. एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट में जहाँ फ्रेंच माइनॉरिटी में थे,
डच वालों ने अपोज नहीं किया, डच और फ्रेंच को इक्वल सीट दी गई। दूसरी तरफ कैपिटल ब्रुसेल्स में फ्रेंच वालों ने प्रोटेस्ट नहीं किया क्योंकि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑलरेडी इक्वल सीट दी गई थी। तो एज अ रिजल्ट इन ब्रुसेल्स दे गॉट इक्वल सीट्स। तो इट मीन्स they made constitution in such a way so that both the communities should be equally satisfied and there should not be any chance of conflict or tension between the two communities. Now come in the third type of government, that is community government. As you have gone through the composition, in Belgium 59% Dutch, 40% French and 1% German also. तो दे थॉट अबाउट जर्मन ऑल्सो, ऐसा नहीं कि उन्होंने उस 1% को उन्होंने छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि हर रीजन में, जिस भी रीजन में जो भी कम्युनिटी मेजोरिटी में है, जैसे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में अगर डच ज़्यादा रहते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पर फ्रेंच ज़्यादा रहते हैं, या किसी जगह पर अगर जर्मन्स ज़्यादा हैं, तो दे हैड पावर टू मेक लॉज regarding their culture, regarding their education, regarding their language. वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी उनके पास ये इंडिपेंडेंस थी कि वो अपने कल्चर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सके, अपने लिए एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ओपन कर सके और आने वाले जनरेशन को अपने लैंग्वेज से रिलेटेड एडुकेशन दे सकें। So if you go through the whole model, it will be very complicated. Why it is complicated? Because country has a separate type of government. Then capital Brussels has a separate type of government. And there is also a community government. Community government जो है community के culture को protect कर रही थी. But in spite of all this, what is the conclusion? Conclusion is कि दे अवॉइडेड सिविल वार बिटवीन टू मेजर कम्युनिटीज़। अगर कंट्री में दो मेजर कम्युनिटी एक दूसरे के साथ लड़ते ही रहेंगे तो फिर कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कंट्री को डिवीज़न होने से भी बचा लिया। तो डैट वाज द कंक्लूज़न कि उन्होंने मेजर कम्युनिटीज़ के बीच देश के अंदर होने वाली लड़ाई, जिसे हम लोग सिविल वार कहते हैं, उस सिविल वार से कंट्री को बचा लिया और साथ ही साथ कंट्री को डिवीज़न होने से भी बचा लिया। तो देयर इट मीन्स कि दे अडॉप्टेड अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो इसका रिजल्ट बहुत फ्रूटफुल रहा बेल्जियम के लिए कि प्रेजेंटली बेल्जियम इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। नाउ दीज अरेंजमेंट्स ऑफ एकोमोडेशन हेल्प टू अवॉइड सिविल वार बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़ एंड अ पॉसिबल डिवीज़न ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइन्स, यानी लैंग्वेज के आधार पर जो डिवीज़न हो सकता था उस डिवीज़न से उन्होंने कंट्री को बचा लिया। तो दैट आइडिया वाज वेरी इनोवेटिव। नाउ कम इन श्रीलंका। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि श्रीलंका में जो सिन्हल्स है वो मेजोरिटी में है और श्रीलंका में जो तमिल्स है वो दो ग्रुप में डिवाइडेड है। 18% तमिल्स में 13% तमिल्स जो है दे आर श्रीलंकन तमिल और 5% तमिल्स जो है वो इंडियन तमिल्स है, जिन्हें ब्रिटिश एरा में इंडिया से श्रीलंका ले जाया गया एज अ प्लांटेशन वर्कर। तो इट मीन्स यहाँ दो लैंग्वेज ग्रुप के लोग रहते हैं। एक तो सिन्हालीज जिन्हें हम लोग कहते हैं, दे आर इन मेजोरिटी 74%, एंड माइनॉरिटी में आते हैं श्रीलंकन तमिल, जिसे तुम लोग देख रहे होगे ब्राउन कलर से, रेड कलर से, तो ये माइनॉरिटी में है। और येलो कलर जो मेजर कलर है इट इज़ फॉर द सिन्हालीज, तो दे आर इन मेजोरिटी। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म को अडॉप्ट किया। मेजोरिटेरियनिज्म हम लोग कहते हैं कि सच टाइप ऑफ पॉलिसीज़ विच फेवर द मेजोरिटी, जो मेजोरिटी को फेवर करे उसे हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। तो श्रीलंका में मेजोरिटी में कौन था, तो वो थे सिन्हल्स, दे वेर इन मेजोरिटी। तो एक्ट ऑफ 1956 रिकॉग्नाइज्ड सिन्हल्स एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। इट इज़ नॉट सिग्नल, इट इज़ सिन्हल्स एज द, तुम लोग इसको सही कर लोगे, तो इट इज़ सिन्हल्स एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी जो तमिल लैंग्वेज था उसे उन्होंने टोटली डिसरिगार्ड कर दिया। तो यानी सिन्हल वाज
accorded given place of the official language. सेकेंड जो मेजोरिटेरियन पॉलिसी थी एक्ट ऑफ 1956 में, उसमें कहा गया कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है या यूनिवर्सिटी पोजीशंस है, इट विल बी गिवन टू सिन्हल ऑनली. तो अगेन देयर वाज अ प्रिफरेंशियल पॉलिसी, यानी सिन्हल को प्रीफर किया गया. और फिर जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसने टोटली सिन्हल का जो रिलीजन था दैट वाज बुद्धिज़्म, उसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया. यानी तमिल्स का जो रिलीजन था, Hindus and Muslims, they were again totally disregarded. So it means whatever policies were adopted, it was in favor of particular language group. उनके लैंग्वेज और उनके रिलीजन को प्रीफर किया गया. और तमिल्स जिनका लैंग्वेज या तो हिंदू था या तमिल्स जिनका रिलीजन या तो हिंदुज़म था या इस्लाम था, उसे टोटली डिसरिगार्ड कर दिया गया. जब श्रीलंका ने ऐसा किया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? तो श्रीलंका ने जब ऐसा किया तो पूरे कंट्री में सिविल वार स्टार्ट हो गया. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज केम, दे अपोज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जिनमें एक बहुत मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम. इट वाज वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल आउटफिट, यानी ये एक तरह का terrorist group था which was operating in Sri Lanka. Or you will be surprised that in 1956 this act was made, and in 1959 Sri Lankan Prime Minister was assassinated and many political leaders were also assassinated. उन्हें मार दिया गया किसी टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा, यानी सिविल वार स्टार्टेड. और इस सिविल वार ने कंट्री के सबसे हाईएस्ट पोस्ट के लोगों को विक्टिम बनाया. And one more thing, in 1991, Indian Prime Minister Rajiv Gandhi also became victim of this Sri Lankan civil war. Okay, so India, which was a neighboring country of Sri Lanka, it was also affected by the civil war of Sri Lanka. यानी neighboring country तक affected रहा. और साथ ही साथ जो है श्रीलंका के थर्ड प्रेसिडेंट राणा सिंघे प्रेमदासा, he was also killed by LTTE. यानी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, कंट्री के प्रेसिडेंट, इवन के इंडियन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्स प्राइम मिनिस्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर was killed by LTTE. So these all became the reason of conflict which was going on in Sri Lanka. Thousands of people were affected. हज़ारों लोग जो है, चूँकि जब भी LTTE को खोजा जाता था, बॉम्बिंग की जाती थी, तो ऐसे में जो है हज़ारों लोग विक्टिम बने. उन्हें डिफरेंट कैंप्स में रखा गया. उन्होंने अपना घर खोया, अपनी फैमिली को खोया. और कंट्री सिविल वार के कारण ना सिर्फ वहाँ के हाईएस्ट लीडर्स जो है, दोज हु वेर इन हायर पोजीशन, दे बिकेम अफेक्टेड, बट कॉमन पीपल ऑल्सो बिकेम विक्टिम विदाउट एनी रीज़न. और इसके पीछे एक ही पॉलिसी थी that was adopted by the Sri Lankan government, and that was the policy of majoritarianism. यानी उन्होंने मेजोरिटी को प्रीफर किया था. that has become the reason of all these civil wars. So what is our final conclusion? Our final conclusion is, if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. अगर मेजोरिटी माइनॉरिटी पर फोर्स करता है, अपनी पॉलिसीज़ को फोर्स करता है और पावर को शेयर नहीं करता है, तो ऐसे में जो है कंट्री की यूनिटी भी स्टेक पर आ जाती है. हो सकता है इसके कारण कंट्री डिवाइडेड हो जाए. लेकिन बेल्जियम के जो लीडर्स थे, दे रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल only by respecting the feeling and interest of different communities and regions. So such a realization resulted in mutually acceptable arrangements for sharing power. Okay students, I hope you understood. Now I am closing this. Stay healthy, stay blessed, and God bless you all.